Okay, so now is it audible? जी सर. So what we are going to do is today we are not just talk about the tribes. I think we have already covered the tribes section where what are the questions that we can guess and what are the thoughts that we should keep remember in terms of understanding the pattern of the question of UGC. One is the important books written on tribes, particularly by anthropologists of India. And so basically, tribes से जो constitutional provision है उसको याद करके रखने का और ट्राइब्स का किस तरह का प्रोसेस का इम्पैक्ट पड़ा है ट्राइब्स के ऊपर उसमें संस्कृताइजेशन है हिंदुइजाइजेशन है ट्राइब्स मूवमेंट है नॉर्थ ईस्ट के मद्देनजर जो भी एक्सक्लूजन और इंक्लूजन का सवाल है all those things are very very important, right? So what you are going to do is just try to list out the names of the sociologists uh, who studied various tribes on India. In this regard, there is a article written by Tribes as Indigenous People India, written by Bharjees Khakha, right? Birginus, Bharjees Khakha. You should keep remember. And also you should keep remember about some of the facts related to Indian census, like the population of Indian tribes, like what are the how many communities there in Indian tribes. So 701 community. So these are the questions that you have to keep in the mind. And also the problem of assimilation and integration, which I have already covered. Then you can talk about some protective discrimination, जो भी आर्टिकल हमने लिखाए थे लास्ट की क्लास में, ठीक है? So these are the things that you should keep in your mind. Now, if you see the UGC net question, there are some questions you will find also on village, right? Village पे किस तरह का क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है? तो आप विलेज पे एम.एन. श्रीनिवास का जो कंटेंट है, ठीक है, उसको आप ध्यान करके रखें। तो आपको पता है विलेज स्टडी जो है 1950s और 1960s में किया गया और आज भी इंडियन सोशियोलॉजी की रियलिटी को समझने के लिए रूरल सोसाइटी को समझना पड़ता है और उसके कॉन्टेक्स्ट में विलेज स्टडी की शुरुआत हुई। विलेज स्टडीज की शुरुआत और यूं कहें विलेज स्टडी 4 ब्रॉड क्वेश्चन से बनता है। पहला, why is the village significant of the imagination of India? कि विलेज का स्टडी क्यों जरूरी है इंडिया के लिए? How does the Indian state perceive village and what are the nature of its interventions? As you know, Gandhi and many important freedom fighters who conceptualized village as an important space. So Gandhi say God made the village and man made the city. Means if you go to the village structure, see if you go to the village and see the structure, you won't find that much mobility. You won't find that much change. So there is a kind of cultural homogeneity. There is a kind of staticness, in
in terms of a structure, right? So I have sent you a link called sociologyguide.com, right, where you can just read out the rural sociology section, where you will find some of the important sociologists' work and how they conceptualize Indian village. So sometimes directly, UGC NET ask the question related to that fact. Right? Third important approach is how have the social scientists, especially social anthropologists, perceive village in their analysis. Right? So there is a kind of study which are very important. For that matter, it has, village study began even before independence India. So colonialism came, and there was a sociologist called Cohen, Cohen, Cohen. Many times what happens, यूजीसी नेट में डायरेक्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन रिलेटेड आ जाते हैं. जैसे कोहेन ने इमेजिनेटिव मॉडलिटीज की बात की थी, है ना. इमेजिनेटिव मॉडलिटीज आप लिख लेना इसको. कई बार यूजीसी नेट में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, इमेजिनेटिव मॉडलिटीज किसके द्वारा डिफाइन किया गया, तो आप कहोगे कोहेन के द्वारा. इसमें उन्होंने बताया कि it's a body of knowledge that is needed and produced by the appropriate knowledge is gathered, its ordering and classifying or classification, and how it transforms into unusual form such as the published report, statistical return, historian, गैजेटर्स का स्टडी रहा है, लीगल कोड का स्टडी रहा है, डॉक्यूमेंट. तो कॉलोनियलिज्म के वक्त में भी, कॉलोनियल टाइम में भी विलेज स्टडी रही है. इसके बाद ये चीज तो हमें देखने को मिलता है कि विलेज became a kind of epitome of India's golden past. एक ये भी विलेज क्यों नहीं बदला, क्योंकि अभी तक जितने भी प्रोसेसेस से इंडियन हिस्टोरिकली गुजरा है, जैसे आप बहुत सारे इन्वेडर्स आए, वो राजधानी तक सीमित रहे, विलेज को एज इट इज छोड़ दिया गया. राइट. इवन प्रॉपर्टी भी लोगों के पास खुद प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. विलेज की कम्युनिटी प्रॉपर्टी हुआ करता था. लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, तो ब्रिटिशर्स एक कानून लेके आए, बंगाल लैंड एक्विजिशन लैंड कानून. और उसके बाद जो है, आपको पता ही है, रैयतवारी और जागीरदारी प्रथा जो पहले थी, वो कैसे खत्म हुआ. राइट. तो उस प्रोसेस के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. लेकिन आप देखो कि लैंड से रिलेटेड, हालांकि कई बार अप्रोचेस को लेके सवाल पूछ लिए जाते हैं, है ना. जैसे एम.के. गांधी का अप्रोच विलेज को लेके क्या रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का अप्रोच विलेज को लेके क्या रहा है, बी.आर. अम्बेडकर को भी को लेके विलेज का अप्रोच क्या रहा है. राइट. तो एम.के. गांधी आपको पता ही है, एम.के. गांधी जो है थे, वो बताते थे कि इंडियन विलेज जहाँ रियल लाइफ होता है इंडिया का, ठीक है. और गांधी तो आपको पता ही है सेल्फ रूल और विलेज रिपब्लिक की बात करते थे. He somehow romanticized, village life, So this was a kind of approach. Pandit Jawaharlal Nehru also recognized village as a very significant place. Pandit Jawaharlal Nehru says that it is village which represents the tradition of India. Traditional, or sometimes village also represents backward aspect of Indian society, which did not
gel with the idea of modern Indian state. So, unlike Gandhi, Nehru did not argue for the revival of village, rather emphasized on development of village society, village infrastructure. ठीक है. Now, B.R. Ambedkar, Bhimrao Ambedkar also disliked Indian village, where he argued that village in India represents a kind of rural civilization based on oppressive social order of caste, right? So ये तीन तरह का अप्रोच है जो हो सकता है यूजीसी नेट में पूछ लिए जाए. आपको ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है कि इंडियन विलेज को लेके महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या अप्रोच था. ठीक है. अम्बेडकर जो है बताते हैं विलेज के बारे में कि वहाँ एक काइंड ऑफ एक्सक्लूजन होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, अनटचेबिलिटी होता है, क्योंकि वहाँ फ्यूडल स्ट्रक्चर है. ठीक है. तो that is the thing that you should keep in your mind, right, while just trying to prepare UGC NET. Second जो है SC दुबे का स्टडी रहा है, उसको भी आप देख सकते हो. क्योंकि मैं अब डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन दुबे का कहना था कि जो इंडियन विलेज पोस्ट मॉडर्न टाइम में, पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट स्पेस रखता है. उन्होंने कहा कि विलेज केम टू बी द लेबोरेटरी ऑफ डायरेक्ट कल्चरल चेंज. अब ये कई बार यूजीसी नेट में पीजीटी टीचर में पूछा गया है कि इसमें से कौन से सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इंडियन विलेज के बारे में बताया है कि इंडियन विलेज a kind of laboratory of directed cultural change. तो आपको याद रहेगा SC दुबे. ठीक है. और आपको पता ही है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया, ग्रीन रेवोल्यूशन आए, इंटीग्रेटिव रूरल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आया, और इसके साथ जो है एक मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस की शुरुआत इंडियन विलेज में भी देखने को मिलता है, जिसमें से जो 5 ईयर प्लान था वो भी बहुत हद तक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया. प्लानिंग कमीशन का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रोल प्ले किया. ठीक है. इसके अलावा एमएन श्रीनिवास को लेके, एमएन श्रीनिवास की जो स्टडी रही है रामपुरा की, जहाँ पे उन्होंने जो है यूजीसी, जहाँ पे उन्होंने मॉडर्नाइजेशन, जहाँ पे उन्होंने सेंसिटाइजेशन कॉन्सेप्ट किया था, उसको कंसेप्चुलाइज किया, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो पहलू है. तो कई बार यूजीसी नेट में रामपुरा के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन से सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने रामपुरा की स्टडी की, राइट. सो दैट इज द thing that we should keep in mind while we are trying to complete this NET examination, right. इसके अलावा तपस्विन भी जुड़ चुकी हैं, और उत्सव जी और निकिता. तपस्विन जो है वो गुड इवनिंग सर. वेलकम. तो पीजीटी टीचर है, इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन जो एग्जाम होता है यूपी का, इन्होंने क्लियर किया है. तो ये भी आपके साथ जो है सोशियोलॉजिकल इंसाइट्स लेने के लिए क्लास में आएंगी. तो बहुत अच्छा. तो हम लोग आज विलेज लाइफ के बारे में चर्चा कर रहे हैं तपस्विन जी, और हम लोगों ने काफ़ी देखा कि विलेज लाइफ को लेके किस तरह का सोशियोलॉजिकल राइटिंग, और जिसमें से किस तरह से मूल सवाल जो है सोशियोलॉजी को लेके और इंडियन सोशियोलॉजी को लेके रहा है 1950s में और 1960s में. उसमें विलेज लाइफ को काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी बनाया गया सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा. तो और इसलिए बनाया गया क्योंकि
जो रूरल डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट था उसमें विलेज इज प्लेस इन रिलेशन टू नेशनल डेवलपमेंट, राइट। तो हमने अभी तीन इंडियन सोशोलॉजिस्ट, रादर हैं इंडियन सोशल थिंकर, एम के गांधी, भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू का क्या अप्रोच था विलेज को लेके, इसको हमने देखा। और जितने भी एंथ्रोपोलॉजिकल राइटिंग है उसमें विलेज को लेके रहा है कि इंडियन विलेज आर ए काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्ड स्टैटिक प्रोजेक्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इसको लेके जितने भी स्टडी है, जैसे बर्मन एक थिंकर है, BREMAN, राइट, उन्होंने भी कई बार यूजीसी नेट में सवाल पूछ लिए जाते हैं कि इसमें से कौन से सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इंडियन विलेज को मोनोलिथिक विलेज कहा। तो आप उसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बर्मन, राइट। इसमें कई सारे इम्पोर्टेंट स्टडीज रही हैं और उसको भी आप देख सकते हैं। जो थर्ड सवाल था जिसमें हम बात कर रहे थे कि विलेज क्यों सोशोलॉजिस्ट क्या स्टडी रहा है, तो इसमें से तीन इम्पोर्टेंट थिंकर हैं, आंध्र बीटे, इसको आप पढ़िए, MN श्रीनिवास और SC दुबे। इन तीनों का कंट्रीब्यूशन जानना बहुत जरूरी है। हालांकि आप अगर इंडियन विलेज के से में किस तरह का कास्टिज्म है, तो अगर आपको प्रॉब्लम के पर्सपेक्टिव से समझना है, खासकर कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, तो इसमें दो तीन थिंकर हैं। लुइस डोमोन, उसको आप एक बार पढ़ लीजिए, डेविड पोकॉक, इसको पढ़ लीजिए, और FG बेली, जिनका यूपी में केस स्टडी रहा है। इन तीनों थिंकर को पढ़ने के बाद आपको एक जो कास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से विलेज लाइफ को समझना है, वो आपको इन तीनों थिंकर से पढ़े मिलने को मिलेगा। इसके बाद इनको अगर हम इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की बात करें, SC दुबे हो गए, मैं जो नाम बोल रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करके भी रख लीजिए, MN श्रीनिवास हो गए। इन्होंने जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन सोसाइटी को समझने का प्रयास, राइट, इंडियन सोशल रियलिटी को समझने का प्रयास किया। इसके अलावा जैसे श्रीनिवास, MN श्रीनिवास का जो जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो विलेज स्टडी से ही प्राप्त हुआ है। आजकल आप लोग सुनते होंगे वोट बैंक, वोट बैंक भी MN श्रीनिवास के द्वारा कॉइन किया हुआ वर्ड है ना, जब उन्होंने पॉलिटिकल लाइफ को समझने की कोशिश किया। सेंसिटाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, डोमिनेंट कास्ट की कैरेक्टर। तो चूंकि हमारे पास अभी उतना वक्त नहीं है कि हम एक एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करें, लेकिन मैं आपको जस्ट इल्यूशन दे रहा हूँ, क्योंकि निकिता और उत्सव दोनों को इस बार UGC नेट का एग्जाम देना है। तो मैं PGT टीचर के क्लास को जब ले रहा हूँ तो उसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन आपके लिए मैं जस्ट आपको इलिस्ट्रेशन दे रहा हूँ कि इस पॉइंट पे आप फोकस करिए, ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना, अगर इंडियन सोशियोलॉजी और इंडियन एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजिकल रियलिटी से कोई क्वेश्चन आती है, ठीक है। इसके अलावा MN श्रीनिवास जो है ए काइंड ऑफ रूरल सोशल स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश करते हुए उन्होंने ये बताया था कि ये सब जो कॉन्सेप्ट है, सेंसिटाइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, MN श्रीनिवास की खूबसूरती ये है कि वो एक्सटर्नल सोशल चेंज की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन इंटरनल सोशल चेंज, इंटरनल सोशल मोबिलिटी किस तरह से होता है, उस रूप में सेंसिटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, रामपुरा का जो उनका स्टडी है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एग्रेरियन स्ट्रक्चर को आपको समझना है, तो मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजिस्ट का जो स्टडी रहा है, जिसमें AR देसाई हो गए है ना, उनका एक नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर बहुत ही खूबसूरत किताब है, राइट, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है।
उसके अलावा एक कई बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इकोनॉमिक प्रोसेस को लेके। इकोनॉमिक प्रोसेस की जब हम बात करते हैं एग्रेरियन, ट्रेडिशनल एग्रेरियन सोसाइटी में, तो जजमानी सिस्टम की बात आती है। श्रीनिवास ये चीज सीखते हैं WH विल्सर और कार्लोटी विल्सर, इन दोनों सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट के माध्यम से। आपको पता होगा हिंदू जजमानी सिस्टम उन्होंने बात किया हुआ। तो हिंदू जजमानी सिस्टम में आपको पता ही है एक किस किस तरह से ये विलेज लाइफ के एक पिक्चर को रिवील किया, जिसमें इकोनॉमिकल रिलेशन में भी कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है ना। कि जो जजमान होते हैं और जो जिनके यहाँ जिसको कहते हैं जजमानी सिस्टम म्यूचुअली एग्जिस्ट करता है। एक कास्ट दूसरे कास्ट के साथ, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर था ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसी तरह से इकोनॉमिकल टर्म्स में भी रिलेशंस होते हैं। आपके नाई है तो वो आपके परिवार का ही वो हमेशा हिस्टोरिकली रिप्रोड्यूस होता है, उसका जनरेशन और आपका जनरेशन एक दूसरे के साथ म्यूचुअली एग्जिस्ट करता है, राइट। तो इस तरह का पिक्चर जो है हमें देखने को मिलता है 1950s और 1960s के जितने भी स्टडीज हुआ है। कई बार पूछ लिया जाता है कि रामपुरा में जो स्टडी हुई थी उसमें MN श्रीनिवास जो किताब, उस किताब का नाम क्या है? उस किताब की नाम है रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ड्स इन साउथ इंडिया। ये किताब का नाम कई बार यूजीसी नेट में भी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा कोटा विलेज का जो नीलगिरी एरिया है, जो डेविड जी मंडलम ने स्टडी किया था, ठीक है। तो कई बार विलेज कौन सा सोशियोलॉजिस्ट किस विलेज का स्टडी किए हुए हैं, एक असिस्टेंट राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये एग्जाम में आ गया है। तो कहने का मतलब, अगर आप बार बार, जैसे सिर्फ यूजीसी नेट का क्वेश्चन नहीं, पीजीटी टीचर का, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम का जब तैयारी करेंगे, पुराने क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, तो कई बार 90% लोग बोलते हैं कि अब सोशियोलॉजी का जो क्वेश्चन है वो रिपीट होने लगा है, पार्शली और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट। तो कहने का मतलब है कि इसको बार बार अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ इंगेज करेंगे अपने आप को, तो जैसे डेविड एम मंडलम का कोटा का विलेज स्टडी है, कोटा विलेज का जो नीलगिरी हिल्स है उसकी स्टडी रही है। उसी तरह ऑपलेयर, मॉरिस ई ऑपलेयर, इनका स्टडी उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट की रही है ना। एक खातलीन गोह है ना, इनका तंजौर डिस्ट्रिक्ट मद्रास स्टेट में ही है, वहाँ उनकी स्टडी रही है। मैक्किमेरियट है ना, जो पेरोकलाइजेशन और यूनिवर्सलाइजेशन की बात करते हैं, है ना। तो उसी तरह उनकी किशनगढ़ी एक उत्तर प्रदेश में जगह है जहां मैक्किमेरियट की स्टडी रही है ना। उसी तरह FG बेली की स्टडी बीशीपुरा में रही है ना, उड़ीसा में, है ना। तो उसी तरह मैसूर में LNR बीट्स की भी स्टडी रही है ना। G मॉरिस की स्टडी रही है उदयपुर में, है ना। मारियन W स्मिथ पंजाब में उन्होंने बहुत सारे स्टडीज किए, है ना। ज्योतिर्मी शर्मा बहुत अच्छी एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, उन्होंने वेस्ट बंगाल को अपना फील्ड ऑफ स्टडी बनाया। WH लुईली, जिन्होंने गड्डी विलेज हिमालयन रेंज में है उनका स्टडी बनाया, है ना। इरिक जे मिलर जो असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है कि कहाँ पे
इरिक जे मेलियर का स्टडी रहा है, तो नॉर्थ केलेरा में केरला में रहा है उनका स्टडी, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये आपको जितने भी स्टडीज हैं, क्लासिकल स्टडीज जहां से कॉन्सेप्ट्स निकले हैं, उसको आपको समझना जरूरी, ठीक है। इसके अलावा एमएन श्रीनिवास के कंट्रीब्यूशन को सारा बुक याद करके रखिएगा। एससी दुबे का कई बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछ लिया है कि निम्नलिखित जैसे एमएन श्रीनिवास के 6 राइटिंग्स है, अब इसको बोलेगा कि इसको आप सजा के रख, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। तो इसका मतलब है कि आपको पूरा कंट्रीब्यूशन और उसका डेट भी याद रहना चाहिए। एससी दुबे, योगेश अटल और रामा कृष्णा मुखर्जी, ये 4 सोशियोलॉजिस्ट का आप जो क्या कहते हैं इसको आप पढ़ लीजिएगा। जस्ट वेट ए मिनट। तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे जितने भी सोशियोलॉजिस्ट हैं उनके स्टडी को आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, खासकर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की बात करें तो इसमें मैं आपको राधा कमल मुखर्जी के बारे में बताता हूँ। राधा कमल मुखर्जी की तकरीबन 10-15 किताबें हैं जिसको कि आपको पढ़ना जरूरी है। मतलब पढ़ना नहीं जरूरी है, सिर्फ डेट याद करना जरूरी है, क्योंकि लास्ट में जो यूपी हायर कमीशन का एग्जाम था उसमें बताया कि इसमें से कौन सा स्टडी जो है रामा कमल मुखर्जी का नहीं है। तो मैं नाम बोल देता हूं, हालांकि इसको मैं भेज भी दूंगा पीडीएफ बना के। द रूरल इकोनॉमिक लाइफ इन इंडिया, द लैंड प्रॉब्लम्स इन इंडिया, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, माइंड एंड सोसाइटी, रीजनल बैलेंस ऑफ मैन, मैन इन हिज habitant, Indian working class, social structure of values, the dynamics of moral, the intercaste tension, the sickness of civilization, the city transition, a survey of social problems of Lucknow, social profile of metropolis 1963 में आया। उसके बाद the openness of mind 1965 में आया, और लास्ट कंट्रीब्यूशन जो है symbolic life of man। कई बार अभी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का ही क्वेश्चन है कि द सिंबॉलिक लाइफ ऑफ मैन निम्नलिखित में से कौन से सोशियोलॉजिस्ट ने दिया, ठीक है। तो आपको हो जाएगा राधा कमल मुखर्जी, ठीक है। राधा कमल मुखर्जी के कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड, क्योंकि जब कई बार हम लोग बात करते हैं, जब किसी प्रोफेसर को टाइम दिया जाता है एग्जाम का क्वेश्चन बनाने के लिए, और उसके पास जब टाइम कम होता है और क्वेश्चन बनाना होता है, तो वो बुक का जो है वो क्वेश्चन बनाना शुरू कर देता है, फलाना ने फलाना बुक लिखा। इसका मतलब है कि जब भी किसी थिंकर को पढ़िए तो थिंकर का कॉन्सेप्ट और उसके कंट्रीब्यूशन और उससे पुराने थिंकर के साथ किस तरह का इंगेजमेंट रहा है, थ्योरेटिकल इंगेजमेंट, राइट। तो ये एक फ्रेमवर्क है जिसके मद्देनजर आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें जो है हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगी, ठीक है। इसके अलावा एससी दुबे का इंडियन विलेज, डीएन मजूमदार का रूरल प्रोफाइल, मिरियट का जो है विलेज इंडिया, और एमएन श्रीनिवास का इंडियन विलेज। मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे एससी दुबे ने जो किताब लिखा है उसका नाम है इंडियन विलेज, और एमएन श्रीनिवास ने जो किताब लिखा है उसका नाम है इंडियन विलेज। तो कई बार लोग इंडियन विलेज को इंडियन विलेज के साथ टिक लगा के जल्दी जल्दी आ जाते हैं। तो इसीलिए एक
कंट्रीब्यूशन में कंफ्यूज नहीं होना है। हर थिंकर का यहाँ पे पर्टिकुलरली ये एससी दुबे वाला और एमएन श्रीनिवास का कंट्रीब्यूशन हर एग्जाम में पूछता है। क्यों? कंफ्यूजन पैदा करने के लिए। ठीक है, तो याद रहेगा एससी दुबे ने इंडियन विलेज लिखा है और एमएन श्रीनिवास ने इंडियाज विलेजेस लिखा है। डीएन मजुमदार रूरल प्रोफाइल और मिरियट ने विलेज इंडिया पे वॉल्यूम्स लिखे। ठीक है, इसके अलावा एमएन श्रीनिवास का सबसे पहले कई बार यूजीसी नेट में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशियोलॉजिस्ट है जिसने इंडियन विलेज को माइक्रोकोजम्स ऑफ इंडिया बोला। हालांकि जोधका भी कहते हैं, लेकिन एमएन श्रीनिवास ने वो पहली बार स्टेटमेंट की। माइक्रोकोजम्स ऑफ इंडिया, राइट। स्टडी अगर इंडिया को समझना है तो इंडिया के विलेज के मद्देनजर इंडिया के, राइट। उसी तरह जितने एमएन श्रीनिवास जो है बहुत सारे अप्रोचेज हैं, है ना, सोशियोलॉजिस्ट में। इंडियन इंडोलॉजी अप्रोच है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच है ना। उसी तरह सबल्टन अप्रोच है ना। उसी तरह मार्क्सिस्ट अप्रोच है। तो वो जो हमने आपको ब्लॉग पोस्ट भेजा था sociologyguide.com, है ना, वहाँ पे बहुत सारे मैंने कंट्रीब्यूशन दिए। तो उस ब्लॉग को आप खोल के एक बार देख लीजिए, है ना। जितने भी सोशियोलॉजिस्ट हैं, किस बिरादरी से, किस स्कूल से वो बिलोंग करते हैं, है ना। क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में यूजीसी नेट का आप अगर हाई स्कोर करना चाहते हैं तो अगर इस, चूंकि 6-7 दिन लगेगा आपको इसकी पूरी तैयारी करने में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का, लेकिन 5 क्वेश्चन तक आप 10 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। और 10 नंबर का मतलब है कि अगर यूजीसी नेट कर रहे हैं तो जेआरएफ हो जाएगा, तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट का तो जेआरएफ हो जाएगा। 10 नंबर का वो पावर है। ठीक है, तो एमएन श्रीनिवास किस तरह से इंडोलॉजी अप्रोच को क्रिटिसाइज करते हैं आपको पता ही है। बुक व्यू और फील्ड व्यू का डिस्टिंक्शन अब यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 बार एग्जाम में पूछा गया है कि बुक व्यू और फील्ड व्यू का डिस्टिंक्शन किन के द्वारा होगा, है ना। तो एमएन श्रीनिवास के द्वारा। ठीक है, बुक व्यू और फील्ड व्यू होता क्या है, बताइए। बुक व्यू और फील्ड व्यू का नाम सुना है कभी आपने, निकिता? क्या होता है बुक व्यू? सर बुक व्यू किसी आर्टिकल्स के को काम करना, एंड फील्ड व्यू फील्ड पे जाके वर्क नहीं, बुक व्यू जैसे टेक्सुअल व्यू, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जैसे जाति की बात बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट जो है महाभारत में, रामायण में या मनुस्मृति में या इंडियन वेद में जितने जाति का सवाल, जितने भी चीज जाति के बारे में लिखा गया है उसको प्रमाण मानकर और उसको स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि भारत समाज भी हिंदू सोसाइटी जो है इन्हीं सब चीजों से मिलकर बनता है। लेकिन एमएन श्रीनिवास ने कहा कि नहीं, जाति जो है हमेशा जो टेक्स्ट में लिखा गया है वैसा नहीं होता है। टेक्सुअल एनालिसिस, क्योंकि इंडिया को बोला जाता है टेक्सुअल एनालिसिस क्योंकि ये सोसाइटी टेक्सुअल सोसाइटी है। क्यों ऐसा इंडोलॉजिस्ट मानते हैं? तो कहते हैं कि ये धर्म शास्त्र के द्वारा इनके लोग जो है वो उनका जीवन दर्शन और उनका जिसको कहते हैं सोशिएबिलिटी कॉन्फिगरेटेड होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और 4 तरह के आश्रम, 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, 4 डिवीजन ऑफ सोसाइटी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। लेकिन ऐसा जब एमएन श्रीनिवास ने रामपुरा का स्टडी किया तो बताया भैया ये तो डोमिनेंट कास्ट भी है, कहीं पे यादव है, हालांकि वो ओबीसी है लेकिन वो बड़ा डोमिनेंट है, उसके पास पॉलिटिकल पावर है, तो वो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। लॉर्ड बुद्धा के समय में राजपूत जो है वो ब्राह्मण से ज्यादा शक्तिशाली था, है ना। लॉर्ड बुद्धा खुद भी
वो राजपूत थे। तो जब कई बार जो टेक्सचुअल एनालिसिस है, जब हम फील्ड में जाते हैं वो गलत हो जाती है। तो ये है एक्चुअली बुक व्यू और फील्ड व्यू। ठीक है, तो बुक व्यू यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच के द्वारा किस तरह एमएन श्रीनिवास ने इन सारे जो काफी सारे इंडोलॉजिस्ट को बोला जाता है कि वो मिथ के जैसा बात करता है, जो मिथ जिस तरह से थियराइज करता है, किसी चीज को कंसेप्चुअलाइज करता है, उसी तरह से ये भी करता है ना। तो इस बात को स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट के अप्रोच में आप देख सकते हैं, है ना। उसी तरह जो है एस सी दुबे का स्टडी है ना, विच एस सी दुबे studies which justifies the change in the focus of social anthropology for tribal studies to village studies. तो एस सी दुबे का जो सेमिनल वर्क है इंडियन विलेज 1955 में आया था, उसमें फिजिकल, डेमोग्राफिकल, हिस्टोरिकल डिटेल्स है सोशल, इकोनॉमिक और कास्ट, पॉलिटिकल और रिचुअल स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। योगेश अटल जी हैं, इन्होंने जो जो स्टडी किया है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है विलेज इंडिया के ऊपर, है। फिर 1957 में जो है वो एफ जी बिले का स्टडी आता है और उनकी किताब है कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर। 1957 में ही रामा कृष्ण मुखर्जी एक किताब लेके आते हैं जिसको कहते हैं डायनेमिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी, एनालिसिस ऑफ द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। और 1957 में ही मॉरिस जी जर्टर्स एक किताब लेके आते हैं जिनका नाम है द ट्वाइस बॉर्न, स्टडी ऑफ कम्युनिटी ऑफ हाई कास्ट इन हिंदूज। ये तीनों कंट्रीब्यूशन में एक नया तरह का कंसेप्चुअलाइजेशन इंडियन विलेज के मद्देनजर लेके आए। ठीक है, और इस तीन स्टडी के बाद तत्पश्चात एस सी दुबे का जो स्टडी है इंडिया चेंजिंग विलेज, जिन्होंने पहली बार बहुत ही बारीकी तरीके से जो प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और डायरेक्ट चेंज इंडियन विलेज में स्टेट के द्वारा जो लाए, उसकी क्या इम्पैक्ट है, उसका एक बहुत ही बेखूबी से वर्णन किया। फिर डी एन मजूमदार 1958 में ही एक किताब लेके आते हैं जिसको कहते हैं कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन विलेज। उन्होंने भी जो है बेंचमार्क रूरल प्रोसेस और पब्लिक अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस को लेके बहुत ही अच्छा एक किताब आपको मिलेगा जिसमें डेटा के साथ रूरल प्रोग्रेस की बात की गई है, कैसे लोगों में सोशल अवेयरनेस फैला उसकी बात की गई है। और उसी 1958 को ही ऑस्लर लेविस एक किताब लेके आते हैं, उसका नाम है विलेज लाइफ इन नॉर्थ इंडिया, जो विलेज लाइफ को और किस तरह का स्टेट के द्वारा जो डेवलपमेंट किया जा रहा है, किस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहा है विलेज। ऑस्वल्ड लेविस ने अपने विलेज लाइफ के इन नॉर्थ इंडिया नाम की किताब में इसका वर्णन किया है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का क्या असर रहा है और प्रोग्राम का उन्होंने इवैल्यूएशन किया। तो आपको याद रहेगा 1957 और 1958 तीन कंट्रीब्यूशन 1957 में आया था एफ.जी. बेली के द्वारा, रामाकृष्ण मुखर्जी के द्वारा और गार्डनर मॉरिस जे कार्टनर्स के द्वारा। फिर 1958 में डी एन मजूमदार, है ना, एस सी दुबे और ऑस्कर लेविस। ठीक है, देखिए ऐसे जब आप चीजों को याद रखेंगे, रटना नहीं है कि इतना में इतना, इतना में इतना, आपको याद रखना है कि कोई भी कंट्रीब्यूशन, सोशियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। वो किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में कोई भी इंसान
कोई रिसर्च करता है, जैसे आप ही पीएचडी करते हो, तो पीएचडी करते हो तो सारे पुराने कामों के साथ अपने को इंगेज करते हो और उसका एक काउंटर एक्सप्लिकेशन, काउंटर नैरेटिव या काउंटर पर्सपेक्टिव कोशिश करते हो देने का। उसी तरह से सोशियोलॉजिस्ट भी इंगेज करते हैं अपने आप को, राइट। फिर 1962 में इपिस्टन, EPSTEIN ने इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज इन साउथ इंडिया नाम की एक किताब में उन्होंने पीजेंट कम्युनिटी को दर्शाया। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पीजेंट कम्युनिटी के स्ट्रक्चर के ऊपर, और उसमें पीजेंट कम्युनिटी पे जो वर्क है ना, जिसमें एलन बे बेल्स हैं जो गोपालपुर के स्टडी किए, फिर वाई डामले, इरावती कर्वे, जिन्होंने ग्रुप रिलेशन इन विलेज कम्युनिटी की बात की। तो ये कुछ कंट्रीब्यूशन आपको ध्यान में रखते हैं। फिर 1965 में एक नया तरह का स्टडी जो है, जो वेवेरियन अपने आप को बोलते हैं, जैसे TN मदान है ना, जैसे GS गुरिये के स्टूडेंट रहे, ये सब जितने भी सोशोलॉजिस्ट हैं, जैसे MN श्रीनिवास हो गए, इरावती कर्वी हो गई। फिर MN श्रीनिवास के स्टूडेंट रहे आंध्रे बीते रहे। तो अब 1965 में थर्ड जनरेशन की शुरुआत होती है ना, जिसमें आंध्रे बीते हैं। आंध्रे बीते का एक बहुत अच्छा बुक है, कई बार यूजीसी नेट में पूछा गया है क्वेश्चन, कास्ट, क्लास और पावर। 1965 में इनकी किताब आई। 1965 में उधर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आंध्र बीते किताब निकाल रहे थे, उधर JNU से TN मदन किताब निकाल रहे हैं। TN मदन की जो किताब है वो फैमिली एंड प्रिंसिप 1965 में ही आई। और ये एक, फिर इसी के साथ मार्क्सिस्ट भी चुप बैठने वाले नहीं थे। AR देसाई, वो भी अपना एक रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया लेके आ गया 1969 में। और इसके साथ JNU से ही MSA राव, जिन्होंने अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंज, स्टडी ऑफ रूरल कम्युनिटी ऑन मेट्रोपॉलिटन थिंकिंग, इसकी स्टडी होती। इरावती कर्वे, उसी के साथ बर्मा की रहने वाली इरावती कर्वे, कई बार मुंबई से भी अपने को एसोसिएट करती है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। उसने 1970 में चेंज एंड कम्युनिटी ऑफ इंडियन विलेज लेके आ गई। फिर नया तरह का रूरल एलिट इन डेवलपिंग सोसाइटी, YV श्री कार्स की स्टडी है। फिर पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की आपने शुरुआत देखी YV श्री कार्स के द्वारा। डेविड जी मंडलम, सोसाइटी इन इंडिया। फिर 1970 में लुइस डुमोन, जिन्होंने होमो हेरार्कस नाम की किताब लिख के पूरे तरीके से अर्बन जो रूरल सोशियोलॉजी है या इंडियन सोशियोलॉजी है, उसको क्रांतिकारी तरीके से बदल के रखती है। आपको पता है होमो हेरार्कस लुइस डुमोंट के द्वारा जो किताब लिखी गई है उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है। तो हम देखते हैं कि 1950 से शुरुआत से लेके और 1970 तक सोशियोलॉजिस्ट भरमार, विलेज स्टडी की भरमार होती है। और इस तरीके से आप जो है फिर बाद में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो एक नया तरह का साइलेंट रेवोल्यूशन लेके आया, उसमें वुमेन लीडरशिप का सवाल और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी का सवाल के साथ DK चौहान राजस्थान की स्टडी करके लेके आ गए। तो इस तरीके से इंडियन सोशियोलॉजी का एक तरह से कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं और उसको थियराइज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है उसको लेके काफी सवाल आ सकते हैं। मैं आपको एक
एक तरीका बता रहा हूं कि कंट्रीब्यूशंस को ऐसे याद किया जाता है, राइट। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच को लेके सवाल पूछ लिए जाते हैं। उसमें सोशल स्ट्रक्चर क्या है? देखो, फंक्शन और स्ट्रक्चर दो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिसके साथ सोसाइटी के फंक्शनलिटी को समझना और सोसाइटी के स्ट्रक्चर को समझना आसान हो जाता है। सोशल स्ट्रक्चर बेसिकली इट्स ए रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ सोशल बिहेवियर। सोशल स्ट्रक्चर गिव्स शेप ऑफ आवर लाइफ, किस तरह से फैमिली, किस तरह से कम्युनिटी, किस तरह से रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कुछ रूल्स के साथ, है ना, कुछ सेरेमनीज के साथ अपने हमारे एवरीडे लाइफ कैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है, ये काम सोशल स्ट्रक्चर का। और सोशल फंक्शन सीक्वेंसेस की बात करता है, ऑपरेशंस ऑफ सोसाइटी की बात करता है, एजुकेशन का क्या फंक्शनल रोल है। तो स्ट्रक्चर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इट्स फंक्शन। समथिंग इट एग्जिस्ट बिकॉज इट हैज समथिंग टू डू विद द सोशल स्ट्रक्चर। कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है बिना फंक्शन। ये फंक्शनलिज्म का थीम लाइन, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का जो स्कूल है वो बहुत कंट्रीब्यूशन है इसका। एमएन श्रीनिवास का जो कंट्रीब्यूशन है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट एनालिसिस के मद्देनजर, अभी हमने बताया बुक व्यू और फील्ड व्यू। बुक व्यू का मतलब a kind of knowledge about the elements which make up Indian society, like religion, like varna, like family, like village, like caste, come from the sacred text, come from the text, religious text. This is called Indological approach. मैक्स मुलर ने जो इंडियन सोसाइटी की बात की वो वेद को ट्रांसलेट करके उन्होंने, मैक्स मुलर जब इंडिया में आ गया सोसाइटी की स्थापना हुई तो उन्होंने वेद को, शास्त्र को ट्रांसलेट करके द सीक्रेट ऑफ बुक्स करके नॉलेज करके बुक पब्लिश करके बताया कि ये इंडियन सोसाइटी इन सब चीजों पे ऐसे काम करती है, इसका नेचर ऐसा है। लेकिन जब एमएन श्रीनिवास ने सोशियोलॉजिकली, जब इंपेरिकली डेटा के साथ, एथ्रोग्राफिकल स्टडीज के साथ जब स्टडी करना किया तो पाया कि अरे ये तो बहुत सारा चीज अल्टर पल्टर है। ब्राह्मण को तो घुसने नहीं दिया जाता है तमिलनाडु के एक विलेज में, हम बात कर रहे हैं ब्राह्मणिज्म, तो उन्होंने ब्राह्मणाइजेशन को चेंज करके तुरंत संस्कृताइजेशन शब्द का इस्तेमाल किया सोशल मोबिलिटी को दर्शाने के लिए। ये फील्ड व्यू का कंट्रीब्यूशन है। फील्ड व्यू, एमएन श्रीनिवास बिलीव that knowledge about the different regions of Indian society can be attained through the field work. This is called field view, right? Empirical method और ethnographical method के साथ समझना चीजों को। तो सिस्टम और विलेज स्ट्रक्चर को समझना एमएन श्रीनिवास ने बड़ा आसान कर दिया। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि कास्ट को कैसे डिफाइन किया एमएन श्रीनिवास ने। कास्ट, निम्नलिखित में से कौन ऐसे सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कास्ट को एज ए सिगमेंट्री सिस्टम बोला? तो एमएन श्रीनिवास ने बोला। इसका क्या मतलब होता है कि कास्ट के भी सबकास्ट होते हैं। कास्ट मतलब यूनिटी ऑफ इंडोगेमी। इंडोगेमी का मतलब शादी अपने बिरादरी में करना। whose members follow a common occupation, the units of social and ritual life, whose members share a common culture, whose members are governed by the same authoritative body like पंचायत। ये 5 जो है कास्ट का फीचर होता है। अब इसी फीचर्स को लेके कई बार यूजीसी नेट में सवाल पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एमएन श्रीनिवास ने बताया, जिसमें हायरार्की होता है, ऑक्यूपेशनल डिफरेंसेस है, रिस्ट्रिक्शन है, पॉल्यूशन है, कास्ट पंचायत और असेंबली है। ये 5 फीचर्स है जिसके मद्देनजर फंक्शनैलिटी ऑफ कास्ट इन माध्यम से
होता है। ठीक है, फिर इंटरकास्ट रिलेशन, जिसमें वर्ण एंड कास्ट का डिस्टिंक्शन है, वो पूछ लिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि वर्ण और जाति में किस तरह से डिवीजन, ने किस तरह से कंसेप्चुअलाइज किया वर्ण और कास्ट के डिस्टिंक्शन को, ये भी बहुत जरूरी है समझना। और कई बार यूजीसी नेट में इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो रिमेंबर्ड विलेज जो 1976 में है, उसमें इन सारे चीजों को अंकित करते हुए सोशियोलॉजिस्ट एमएल श्रीनिवास हर चीज को ईच एंड ईच आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया है। संस्कृताइजेशन हो, वेस्टर्नाइजेशन हो, है। इसके अलावा उन्होंने डोमिनेंट कास्ट के भी कैरेक्टर को समझाने की कोशिश किया है। क्या होता है डोमिनेंट कास्ट का कैरेक्टर? सीजेबल अमाउंट ऑफ एरेबल लैंड हो उसके पास, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ हो, हाई प्लेस इन लोकल हायरार्की हो, वेस्टर्न नॉलेज हो, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हो, सरकारी नौकरी में अगर उसका रिप्रेजेंटेशन, और अर्बन सोर्स ऑफ इनकम। ये 6 एट्रीब्यूट्स बताया एमएन श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट को लेकर। कई बार जो स्टेट सर्विस कमीशन है उसमें डोमिनेंट कास्ट को लेके सवाल पूछ लिए जाते हैं एट्रीब्यूट्स के लेके। लोग जो है सिर्फ 5 एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, भूल जाते हैं अर्बन सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, इवन कई सारी किताबों में भी जो है सिर्फ 5 जो है की चर्चा की गई। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये सब कॉन्सेप्ट से सवाल इर्द गिर्द सवाल होते हैं, है ना। ब्राह्मणाइजेशन, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन और मॉडर्नाइजेशन, ये 5 प्रक्रिया को आपको, जो हमने आपको नोट्स भेजा है sociologyguide.com, इस पर जाके आप देखिए। और अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप इजीली तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो इसके, हाँ, इसके अलावा जो है एमएन श्रीनिवास के बाद ए आर रेडक्लिफ ब्राउन से प्रभावित रहे हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि एमएन श्रीनिवास किन सोशियोलॉजिस्ट से प्रभावित रहे हैं, तो ए आर रेडक्लिफ ब्राउन के वो स्टूडेंट रहे। तो कहने का मतलब इस तरह से आप जो है कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको याद रखना जरूरी होगा जब भी एमएन श्रीनिवास को आप समझे, जाने या सुने, तो आपको याद आएगा अच्छा ये इन्होंने इंडोलॉजी पर्सपेक्टिव को काउंटर में जो है इन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच के साथ स्टडी किया। रेडक्लिफ ब्राउन के का जो नोशन है सोशल स्ट्रक्चर, ये नोशन आप एमएन श्रीनिवास में भी पाएंगे। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट किस तरह से सोसाइटी को देखता है, इसके कॉन्सेप्चुअलाइजेशन आप इनके कॉन्सेप्ट्स में पाएंगे। एमएन श्रीनिवास किस तरह सोसाइटी को देखते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट सी इंडियन सोसाइटी एज a kind of continuing social conflicting मीन्स ऐसे पूछ लिया जाएगा कि कौन से सोशियोलॉजिस्ट हैं, एक जैसे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट का अप्रोच है वो दे देगा और बताएगा कि इनमें से कौन से सोशियोलॉजिस्ट हैं। एक तरफ मार्क्सिस्ट है, एक ऑप्शन में एमएन श्रीनिवास होगा, जिन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच के मद्देनजर जैसे सोसाइटी कॉन्सेंसस के आधार पे बेस्ड है रेदर देन कॉन्फ्लिक्ट। तो इस तरह से भी इसको कहते हैं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन, है ना। अब यूजीसी नेट में क्या होने लगा है कि इस तरह के क्वेश्चन की भरमार होने लगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लोगों के पास क्वेश्चन बैंक है, तो अनटच्ड क्वेश्चन कैसे पूछा जाए।
तो इस तरह से वो खेल खेलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सोशियोलॉजिस्ट को आप याद रखेंगे। अगर आप कहें तो फिर हम आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझने की वो हो रहती है। तो तैयार हैं, कुछ कर लें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 से 25? जी सर। ठीक है, जस्ट देखिए। क्वेश्चन दिख रहा है क्या? जी सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम करते हैं। बताइए, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, A statement of relationship between variable to be tested is known as? Research question, hypothesis, objectivity of a study, or problems of study? Hypothesis. क्या बताया आपने? B option, hypothesis. बहुत बढ़िया, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर Marx, human potential is actualized when democracy is institutionalized in the objectification of products, during the capitalist stage or during the primitive stage? सर बी ऑप्शन। बिल्कुल सही, in the objectification of products. Next question, क्वेश्चन समझ में आया? ह्यूमन पोटेंशियल, आपको पता है क्लास इन ग्रुप और क्लास फॉर इटसेल्फ, क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ। तो क्लास फॉर इटसेल्फ कन्वर्ट होगा द ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। ह्यूमन पोटेंशियल इज एक्चुअलाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ वाला सेक्शन को जो पढ़ाई थे उससे रिलेटेड है क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, a relationship in which change in one variable always induce change in other variable. बताइए। Cause and effect relationship. Cause and effect relationship, बिल्कुल सही आंसर है। Which of these theories were the intellectual fountainheads of conflict theory? बताइए, कॉन्फ्लिक्ट थियरी का फाउंटेन हेड कौन है? जीएस मीड, इरविन गॉफमैन, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमान दुर्की, हर्बर्ट स्पेंसर और एडवर्ड विल्सन और Karl Marx and Max Weber. ठीक है, हालांकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट थियरीज में कार्ल मार्क्स तो सही है, लेकिन मैक्स वेबर थोड़ा कॉन्टेस्टेड है, क्योंकि इनके ऑफकोर्स इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट की बात की हुई थी, लेकिन इनका जो अप्रोच है वो थोड़ा अलग तरह का अप्रोच है। तो इनको हम पूरी कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें कई बार यूजीसी नेट में फिलोसफिकल इंगेजमेंट उस तरह से नहीं होती है क्वेश्चन बनाते समय। तो हालांकि कार्ल मार्क्स है तो आप यही जाएंगे कार्ल मार्क्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हैंग होने लगा है, आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। सर हैंग हो गई। हाँ हाँ, ये लैपटॉप से जो है कोई नहीं, आई थिंक हम जस्ट मैं ना क्वेश्चन को भेज देता हूँ व्हाट्सएप के थ्रू, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं।
आपके क्लास के ग्रुप में भी पहुंच गया है क्वेश्चन। ठीक है, मिल गया आप लोगों को। जी सर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़ेंगे तो मैं थोड़ा अच्छे तरीके से जवाब दे पाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, one labeled as assertion and other labeled as reason. तो उसमें both Louis Kozer and Ronald Collins are grouped under the conflict school. Both of them highlight the function of conflict is in maintaining the society. बताइए। ए ऑप्शन। लुइस कोजर और रोनाल्ड कॉलिन, ठीक है, इसमें सही है, लेकिन बी ऑप्शन, आपने कौन सा ऑप्शन बताया? सर फर्स्ट। नहीं, फर्स्ट ये आर वाला स्टेटमेंट गलत है। दोनों ने फंक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं की हुई थी। लुइस कोजर ने फंक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात की थी, कॉलिन ने फंक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं की। तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट स्कूल से हैं, लेकिन याद रखिएगा ये जो कॉलिन है, इन्होंने फंक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात, इन्होंने फंक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन मेंटेनिंग सोसाइटी नहीं कहा, ये सिर्फ लुइस कोजर ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन फॉर इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन आर। इंसर्जेंसी को पता है, पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है अस्पा के कानून के अंदर है। इथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेवलपमेंट डिप्राइवेशन, लैंड alienation and poverty, criminalization of politics and corruption, religious fundamentalism and terrorism. बताइए कौन सा? ए ऑप्शन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, शायद अब लगता है काम कर रहे हैं। दिख रहा है क्वेश्चन? स्टॉप करके फिर से करता हूँ। ठीक है, 6 नंबर को तो हम आराम से देख चुके हैं। 7th नंबर पे आते हैं। 7th नंबर को पढ़िए। इसमें है, Townsend asserts that the poverty can be defined objectively only in terms of the concept of relative deprivation, or society determines people's need patterns of food consumption. बताइए, assertion और reason का क्वेश्चन है, क्या होगा इसका जवाब? सी ऑप्शन। सर ए ऑप्शन। देखिए, पहले तो ये समझिए कि दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन अब देखिए कि रीजन जो है वो असर्शन से मैच नहीं कर रहा है। भाई टॉनबी ने कहता है कि पॉवर्टी कैन बी डिफाइंड ऑब्जेक्टिवली ओनली इन टर्म्स ऑफ द कांसेप्ट ऑफ रिलेटिव डिप्राइवेशन। रिलेटिव डिप्राइवेशन का मतलब क्या होता है पता है? एक होता है एब्सोल्यूट डिप्राइवेशन और एक होता है रिलेटिव डिप्राइवेशन। जैसे मान के चलिए आपके पास खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं है, इतना भी पैसा नहीं है कि आप अपने परिवार और अपना पेट भर सके, उसको कहेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी। लेकिन जैसे अमेरिका वगैरह सब में क्या है कि ठीक है, आपके पास कार नहीं है और बाकी सारे लोगों के पास कार है, तो आप गरीब हो गए, इसको कहेंगे रिलेटिव डिप्राइवेशन। पड़ोसी के पास इतना पैसा है कि वो
हर दिन बाहर में खा सकता है मॉल में, आपके पास इतना पैसा है कि आप एक ही दिन में, साल में 2 दिन ही खा सकते हैं। इसको कहेंगे रिलेटिव डिप्राइवेशन। ठीक है, तो जब किसी रिलेशन में पॉवर्टी होगी, राइट, तो कॉज ये सही है पॉवर्टी डिप्राइवेशन कॉन्सेप्ट, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन से मैच नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो तपस्सुम जी आप भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, अगर कोई क्वेश्चन बच्चे गलत बताते हैं तो आप उसको करेक्ट कर सकती हैं। 8 नंबर है, हु सजेस्टेड द गॉड इज सोसाइटी डिवाइन डिवाइनाइज्ड। सर बी ऑप्शन। आप बताइए निकिता। सर बी सेकंड ऑप्शन। आपको मैंने बताया था, इमाइल दुर्खिम को पढ़ाया था तो क्या बताया था? इमाइल दुर्खिम को पढ़ाया था तो बताया था ना कि सोसाइटी इज लाइक गॉड। दुर्खिम कहता है सोसाइटी इज लाइक गॉड, सुजनरी नेचर, जिसको बनाने वाला पता नहीं, जो अपने आप बनता और बिगड़ता है। इसीलिए इट वाज इमाइल दुर्खिम हु कंसेप्चुअलाइज्ड सोसाइटी एज गॉड। तो गॉड इज सोसाइटी डिफाइनाइज हमेशा इमाइल दुर्खिम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया इन ए Indian family, the parents prepare their daughter to be a good wife, oblique daughter in his or her, sorry, in her in-laws home. This is an example of सर बी ऑप्शन, रिसोशलाइजेशन। रिसोशलाइजेशन। कहाँ हो जाएगा, ये एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है। याद करिए आर के मॉर्टन को, जब आप लड़की को सिखा रहे हैं कि कैसे खाना बनाओ, कैसे अच्छे सर डी तरीके होगा से, इसका। हाँ एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन होगा। ठीक है, रीसोशलाइजेशन शादी के बाद होता है हस्बैंड और वाइफ के, शादी से पहले नहीं। एंटीसिपेटरी सोशलाइज, मिलिट्री तैयार होता है मिलिट्री में युद्ध करने के लिए, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग which of which theory among the following states that people are motivated by the self interest in the interactions with other? बताइए। ये क्वेश्चन कई बार यूपी पीजीटी में आ गया है, एक बार आया है। सर इंटरेक्शन, नहीं, इंटरेक्शन कैसे होगा, एक्सचेंज या कॉन्फ्लिक्ट तो हो नहीं सकता है, इंटरेक्शन भी नहीं होगा, जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होना चाहिए मीनिंगफुल। इसमें सेल्फ इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट का सवाल जहां भी आएगा तो सेल्फ एक्सचेंज थियरी हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये सोशल एक्सचेंज थियरी का हार्ड लाइन कि पीपल आर मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट इन देयर इंटरेक्शन विद द अदर, है ना। लेन देन, बेटी को देना, है ना, दामाद पाना, लेन देन का मामला है, सोशल एक्सचेंज का मामला है। और में मौसों को पढ़िएगा, मौस भतीजे थे उन्होंने किताब लिखी द गिफ्ट, उसको पढ़िएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन पे आइए, सोशल मैचिंग है, सोशल क्लास एंड स्ट्रेटिफिकेशन, द पावर एलीट, द क्लास सिटी एंड पावर, क्लास इन मॉडर्न सोसाइटी। कोई भी एक बुक अगर आपको पता है तो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो याद रखिए कि सोशल क्लास एंड स्ट्रेटिफिकेशन एक पी सुंदर्स के द्वारा लिखा गया। पावर इलीट टीवी बॉटम, नहीं, पावर इलीट तो सी राइट मिल लिखा हुआ था कि टीवी बोर्ड बॉटम बोर्ड। बताइए, पावर इलीट को हमेशा लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो टीवी बॉटम बोर्ड ने इसको नहीं लिखा है, इसको लिखा है सी राइट मिल के द्वारा। सी राइट मिल
आपको पता है जिन्होंने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की बात की, ठीक है। तो पावर इलीट याद रखिएगा, सीराइट मिल के द्वारा लिखा गया है। फिर क्लास सिटी एंड पावर, ये बहुत ही खूबसूरत किताब मैनुअल कास्टल के द्वारा लिखा गया है। अर्बन सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट बुक है इंफॉर्मेशन एज, नेटवर्क सोसाइटी, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन बचा क्लास इन मॉडर्न सोसाइटी, ये टीवी बॉटमोर के द्वारा लिखा गया, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट आइए 12 नंबर पे, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ सोशल एक्शन। ये बताइए किसके द्वारा कहा गया स्टेटमेंट, सोशल एक्शन। मैक्स वेबर। हाँ बिल्कुल, उन्होंने, he was the man who transformed the whole theorizing process of society, social system, social structure। तो तुरंत जो है सोशल एक्शन, और इसके बाद हॉफमैन और जितने भी सोशल एक्शन को समझने वाले, चाहे टैलकॉट पार्सन हो, मैक्रो से माइक्रो सोशियोलॉजी को एडवांस कर दिया। तो ये कथन मैक्स वेबर ने सोशियोलॉजी को सोशल एक्शन का शास्त्र माना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ। और इससे पहले सोशियोलॉजी का एक्सप्लेनेशन होता था, मैक्स वेबर ने एक्सप्लेन किया सोसाइटी को, नहीं अंडरस्टैंड किया, उन्होंने वेस्टर्न मेथड दी। पहले एक्सप्लेनेशन होता था, अगस्त कॉम्ट लॉ देते थे, लॉ ऑफ प्रोग्रेस, लॉ ऑफ स्पीड, कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन करते थे। लेकिन मैक्स वेबर ने कहा कि अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सप्लेनेशन। अंडरस्टैंडिंग, समझना, फील्ड स्टडी की का एक शुरुआत जिसको कहते हैं। मैक्स वेबर से प्रभावित होकर बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट ने एक्सपीरियंशियल नॉलेज की महत्वता को स्वीकारा, अंडरस्टैंडिंग को स्वीकारा रादर देन एक्सप्लेनिंग। हाँ, तो ये बहुत मैथोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ imperatively coordinated association was given by कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, लुईस कोजर। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन कौन सा है? सर लुईस कोजर। फोर्थ ऑप्शन कौन सा है मेरे? हाँ, डेरेंडॉफ होगा, क्योंकि डेरेंडॉफ की जो किताब है ना, जिन्होंने नए तरीके से कॉन्फ्लिक्ट थियरी को, मार्क्सिस्ट थॉट को समझा, तो उनकी बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने इस चीज की चर्चा की हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट ऑथोरिटी से कैसे पैदा होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑथोरिटी कैसे कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, मिडिल क्लासनेस में जो मैनेजरियल ट्रेट है उससे कैसे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो डेरेंडॉफ की एक कंट्रीब्यूशन है। अकॉर्डिंग टू इमाल दुर्खिम, religious practice are best understood as satisfying the spiritual interest of human beings, helping human beings to get relief from the problems of mundane life, showing alternative to the existing practices of collective life, contributing to the integration and stability of society। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? डी सर। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि उनका कहना था कि रिलीजन जो है वो गॉड जैसा सोसाइटी है, रिलीजन जो है सोल ऑफ द सोसाइटी, राइट। क्यों सोल ऑफ द सोसाइटी है? क्योंकि ये कलेक्टिव कॉन्शसनेस को इनकलकेट करता है, और कलेक्टिव कॉन्शसनेस जो है, उन्होंने, आप अगर डिफिनेशन पढ़िएगा सोशियोलॉजी का, इमाल दुर्खिम का, वो कहता है सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ कलेक्टिव कॉन्शसनेस। तो इस मामले में ये कथन जो है बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेपोटिज्म के ऊपर है। नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म एंड करप्शन आर इंक्रीज इन इंडियन सोसाइटी।
The situation has risen due to the lack of political will. बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सर पहले बताइए दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं? सर दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है, तो बताइए। तो एक इसका ही आंसर ऑप्शन, बी सर। हाँ बिल्कुल बी सही। बी इसमें सर। सिंपल सवाल पूछा गया है, निकोटिज्म का रीजन नीचे लिख दिया गया है, द सिचुएशन हैज राइजन ड्यू टू द लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। ठीक है, रीजन और सेशन में बिल्कुल गहरा संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, द टेम्पोररी फॉर्म ऑफ मैरिज फाउंड एमंग द मुस्लिम इज कॉल्ड। बताइए, निकाह, मुता, मेहर और खुर्द। मेहर सर। सर बी, मुता। देखिए आप मुस्लिम हैं, आपको पता है, तो मुता होगा इसका एग्जाम्पल। मेहर तो दहेज टाइप का होता है ना? दहेज टाइप का नहीं होता सर, ये जो शादी होती है उसके बाद जब निकाह होता हाँ, है उस टाइम पुरुष पे जो इसको देता है। एक समझौते के तौर पर बांध दिया जाता है, अगर आप हाँ। स्त्री को छोड़ते, वो स्त्री धन कहलाता है। हाँ, वही दहेज स्त्री नहीं होता, धन वो है। स्त्री धन। और वो जब वो दिया जाता है कि जब आप जैसे मान लो तलाक दे दिया, उस टाइम पे दिया जाएगा। लाइफ में हाँ। या साथ साथ रहते हैं तो कभी भी किसी टाइम दे सकते हैं। यहाँ पर स्त्री उसे माफ भी कर देती है, नहीं भी लेती है। जैसे स्त्री होता है ना, संपत्ति में अधिकार होता है लेकिन लेती नहीं है। इसी तरह मेहर होता है, अधिकार तो होता है, कभी कभी लेडीज छोड़ देती हैं इसको, इस टाइप से। तो बिल्कुल वो एक ऐसे आप सोचिए, जैसे हिंदू में एक दहेज प्रथा है, उस तरह का तो नहीं है, लेकिन एक तरह का पुरुष के द्वारा महिला को शायद वो एक हाँ। कुछ प्रॉपर्टी जो है, तो उसको उस टर्म्स में से चाहिए, लेकिन यहाँ मैरिज की बात है, तो यहाँ पे मुता सही एग्जांपल, सही करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, वुमेन एम्पावरमेंट resulted in rural India during the last 2 decades. 73rd Constitutional Amendment empowered rural Indian women. अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही बी है? ऑप्शन। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि इसीलिए बोला जाता है 73rd अमेंडमेंट के बाद वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से बोला जाता है साइलेंट रेवोल्यूशन हुआ इंडिया में। बहुत लीडरशिप, बहुत सारे स्टेट में तो 50% तक रिजर्वेशन है ना, तो वो चीज जो है देखने वाली है। अब हालांकि 33% रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन बहुत सारे स्टेट जैसे बिहार है ना, वहाँ पे 50% तक रिजर्वेशन जो है वो दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया is leading to commercialization of education. Commercialization of education has deprived many poor deserving students from quality education. 18 का सर बी ऑप्शन है, भी लग रहा है। क्या? सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन कैसे होगा? दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन करेक्ट दोनों आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है सी ऑप्शन ए का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि देखिए कॉमर्शियलाइजेशन तो है, कॉमर्शियलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और कॉमर्शियलाइजेशन में संबंध है, लेकिन रीजन नहीं है। प्राइवेटाइजेशन बहुत सारे लोग, प्राइवेटाइजेशन बेनिफिशियल भी होता है ना, लेकिन कॉमर्शियलाइजेशन में सही बात है कि जिस तरह से अब देखिए, एक यूजीसी नेट का कोचिंग पढ़ने के लिए लोग जो है 20-20 हजार, 25-25 हजार रुपया पे करते हैं, तो बहुत सारे लोग एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और जब तक आप कोचिंग के साथ नहीं जुड़ेंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक, बिकॉज nobody will help you, even if you study in good university, nobody will be there to help you कि यार इस तरह का क्वेश्चन आता है, इस तरह का नहीं आता है, राइट? तो चूंकि टीचर बैठ के पूरा मेडिटेट करता है, क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन को वो देखता है। मेरे पास तकरीबन 8000 क्वेश्चन है यूजीसी नेट से रिलेटेड, और वो 1991 से, तो उसको मेडिटेट कर रहे हैं कि किस तरह से कहाँ कहाँ पे सवाल आते हैं, राइट? तो कई बार
क्वेश्चन जो है हाँ पूछ लिया जाता है, राइट, इन दैट से। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ के बताइए कौन सा आंसर है। सर ए कॉलिंस। हाँ आप बताइए। हाँ ऑर्गेनाइजेशन आर, हाँ डेरेनडॉर्फ, अभी हमने बताया कि अथॉरिटी को, ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्फ्लिक्ट का वजह माना था राल्फ डेरेनडॉर्फ ने, ठीक है, सॉरी वो राल्फ डेरेनडॉर्फ ने अथॉरिटी को कॉन्फ्लिक्ट माना था, लेकिन रोनाल्ड कॉलिन ने बताया कि ऑर्गेनाइजेशंस आर द एरियाज फॉर स्ट्रगल, और उसमें बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो एक्चुअल में फंक्शनल काम करता है। कॉलिन ने ये बताया कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उसकी जो सोर्सेज है वो ऑर्गेनाइजेशन में छुपा हुआ है ना। जैसे आप यूनिवर्सिटी में टीचर को ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कराने का कोशिश करता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कोशिश करता है कि मैं ज्यादा बेनिफिट लूं, जो नीचे जो है स्टूडेंट वो कहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव काम लूं, राइट, टीचर के पास सैलरी नहीं होता है, राइट। तो कहने का मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है, हर ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे झगड़ा होते रहता है, एक कलीग दूसरे कलीग के साथ झगड़ा करते रहता है, एक एम्प्लॉयर कस्टमर के साथ। तो एक काइंड ऑफ स्ट्रगल, साइट ऑफ स्ट्रगल, रोनाल्ड कॉलिन की जो बुक है उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन का जो टिपिकल कैरेक्टर है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट का मैनिफेस्टेशन होता है, इनकल्केशन होता है ऑर्गेनाइज स्ट्रगल का, तो उस पर आपको जानकारी मिलेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में। Who suggested that the conflict has a functional importance in society? बताइए। बी कोजर। हाँ लुइस कोजर। अभी कुछ देर पहले हम एक लुइस कोजर और रोनाल्ड कॉलिन के बीच का डिफरेंस हमने पता किया था। तो देखिए ये डिकोडिंग गेज बड़ा जरूरी है। कई बार लोग तुरंत बेहोश होकर क्वेश्चन पढ़ते हैं और टिक लगा देते हैं, तो यहाँ रोनाल्ड कॉलिन को जैसे ही टिक लगाएंगे फंस जाएंगे, गलत हो जाएगा। तो लुइस कोजर फंक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट किताब लिखी थी और उनका वो श्रेय जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट का जो है एक फंक्शनल रोल होता है। नेक्स्ट है 20। अब देखिए मैचिंग आ गया फिर से, इसीलिए बुक को याद रखना बहुत जरूरी है। जो मैंने आपको लास्ट में नोट्स भेजा था उसमें सारा कंट्रीब्यूशन अगर आप याद रखेंगे तो 5 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर देंगे आप। पावर एलीट अभी हमने बताया था किसके द्वारा लिखा गया है। अब देखिए पावर एलीट को आप भूल जाओ क्योंकि यहाँ पे सी राइट मिल है ही नहीं, है ना। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, फिनोमिनोलॉजी पता है लुइस कोजर के द्वारा लिखा गया, सॉरी फिनोमिनोलॉजी अल्फासूस के द्वारा लिखा गया। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? सर डी का 5 है क्या, कॉन्फ्लिक्ट एंड अथॉरिटी? सर सी आंसर सही है इसका। 21 का राल्फ डेरेनडॉर्फ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अथॉरिटी बिल्कुल सही। जीएच मीड, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म सही है। अल्फासूस फिनोमिनोलॉजी सही है। और लुइस कोजर जो है सही बात है, फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट लिखा था। पावर एलीट का राइटर है ही नहीं इसमें सिराक में, तो जहां भी 1 ऑप्शन है वो उड़ जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है which one of the following statement is not reflective of conflict perspective? Society as a struggle for resource and power. Change is inevitable, often beneficial, and can be violent. Society is viewed as a complex system of parts that interrelated, that interact to perform various necessary functions. Conflict between classes determine social class. बताइए इसमें ऑप्शन कौन सा ऑप्शन जो है बताया कि नॉट, हाँ ए ऑप्शन सही नहीं, कैसे होगा ए ऑप्शन?
सोसाइटी एज ए स्ट्रगल फॉर रिसोर्स और पावर, यही नहीं सर, सी ऑप्शन, सी पर्सपेक्टिव है। सर सी। सी ऑप्शन। सही है। सोसाइटी इज ए व्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ये तो फंक्शनलिज्म की बात कर रहा है ना, वो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव की बात कर रहा है कि वेरियस सिस्टम पार्ट्स दैट इंटरैक्ट टू परफॉर्म वेरियस नेसेसरी फंक्शन। तो ये स्टेटमेंट सी गलत है, बाकी सब जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। मैच द आइटम। अब बताइए, लिस्ट 1 लिस्ट 2 में मैचिंग का है, तो इसमें से इस तरह के क्वेश्चन में अगर दो भी आपको पता है तो आप आराम से टिक जो है वो लगा सकते हैं। आप लोगों में से बहुत को पता होगा कि डी स्कूलिंग सोसाइटी किसने लिखा हुआ है। डी स्कूलिंग सोसाइटी आपको पता है कौन लिखे थे? इवान इलिच। इवान इलिच। पता है? तो जी। जैसे ही 1 डी स्कूलिंग सोसाइटी इवान इलिच हो जाएगा, तो डी 4 है, और इवान इलिच डी का 4 कहाँ है? डी का 4 है ना, 2 जगह है। और बताइए, सोशल रिलेशंस इन सेकेंडरी स्कूल किसने लिखे थे? सर पहला लग रहा है, GFW। एक तो डी स्कूलिंग सोसाइटी, वो तो पता हो गया, इवान इलिच लिखा था। एक्चुअली सी का भी इसमें ना, सर पता चल गया, सी का हाँ भी। नहीं, इसमें जो है ऑप्शन गलत, ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि एक स्टेटमेंट मैच नहीं हो रहा है इसमें। तो कई बार होते हैं कि क्वेश्चन जो है वो गलत पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि वैरिंग नहीं होता है पीएच और दिस का पैकिंग, तो कई बार ऑप्शन गलत होते हैं। लेकिन ये इसमें ध्यान रखिएगा, जो सोशल रिलेशन इन सेकेंडरी स्कूल, जहाँ तक मुझे पता है कि एक बार मैं खुद भी सर्च करके देख लेता हूँ। कई बार यूजीसी नेट में ना ऑप्शंस जो है वो गलत दे देते हैं। हाँ, वो डेविड एच हार्सवी के द्वारा लिखा गया है। हाँ सही है, डेविड एच हार्सवी के द्वारा ही लिखा गया, तो बाकी ऑप्शन ही इसमें मैच नहीं कर रहा। तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन करेक्ट है, और दोनों ऑप्शन कहीं भी करेक्शन दिख नहीं रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, विच थियरी एडवोकेट्स द व्यू दैट डोमेन ऑफ सोशियोलॉजी इज द कॉमन सेंस वर्ल्ड इन एवरीडे लाइफ। कॉमन सेंस वर्ल्ड इन एवरीडे लाइफ, बताइए। सर सी। बिल्कुल सही। सी ऑप्शन। फिनोमेनोलॉजी का जैसे कंट्रीब्यूशन ही वही है कि कॉमन सेंस को अंडरस्टैंड करना। बाकी जितने भी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, उनमें से पहली पर्सपेक्टिव कॉमन सेंस को लाइफ वर्ल्ड को समझने के लिए, एवरीडे लाइफ को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, और वहीं से सोसाइटी को आप डिकोड कर सकते हैं। इसीलिए फिनोमिनोलॉजिस्ट जो है वो रिस्पोंडेंट का जो व्यूज है उसको ज़्यादा तवज्जो देता है। ठीक है, कि इंसान ट्राइबल सोसाइटी का जब स्टडी करने जाएगा, फिनोमिनोलॉजी का मतलब इनसाइडर व्यूज में रिस्पोंडेंट कैसे चीजों को थियराइज करता है अपने हाथ से। थोड़ा सा इकोनोमेथोलॉजी भी फिनोमिनोलॉजी से प्रभावित होकर अपना मेथोलॉजी को इवॉल्व किया, लेकिन कॉमन सेंस की जहाँ भी बात आएगी सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजी के डोमेन में, तो वहाँ फिनोमिनोलॉजी। अल्फासूस को आप पढ़िएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कॉमन सेंस नॉलेज को किस तरह से जो इग्नोर किया जाता था सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा, उसको फ्रेमवर्क में लाया, सोशियोलॉजिकल फ्रेमवर्क के एनालिसिस में। तो 25 नंबर, which of the following is not an element of symbolic interactionism? सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की में कौन सा पार्ट नहीं है? सेल्फ, ईगो, सिंबल्स और रोल टेकिंग। सर बी। बी ऑप्शन है। हाँ, क्योंकि सेल्फ पता ही है, सिंबल्स भी है,
रोल टेकिंग भी है लेकिन ईगो नहीं है ना। तो अच्छा है, आप सही जा रही है। ये क्वेश्चन निकिता पहले आप जवाब देना। सेंस ऑफ एलिनेशन इज इंक्रीजिंग एमंग दलित, atrocities have increased in recent year on dalits। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? पहले बताइए दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं। रीजन दिखा दीजिए, ऊपर दिख। इसमें ये है कि सेंस ऑफ एलिनेशन, दलितों में जो है एलिनेशन आप समझते हैं। बोथ सही है, दोनों सही है। दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर डी, सोचना क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट, फिर लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, बताइए कौन सा ऑप्शन है ये। सर डी। डी में आप कह रही हैं कि ऑलमैन ठीक है, द ह्यूमन ग्रुप लिखा है इसमें। सी राइट सही है, इसमें जो है ग्रुप डायनेमिक्स की बात, कार्ट राइट ग्रुप डायनेमिक्स की बात की हुई थी। एमएस ऑलमेट स्मॉल ग्रुप की बात की हुई थी। आरएस फॉलर ठीक है, वो कलेक्टिव बिहेवियर की बात, टर्नर जो है कलेक्टिव बिहेवियर की बात की। सही है डी वाला ऑप्शन। कंट्रीब्यूशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। रिवार्ड एंड पनिशमेंट एसोसिएटेड विथ रोल एक्सपेक्टेशन आर कॉल्ड, ये सिंपल क्वेश्चन है। 28 नंबर बताइए। मोर्स, सेंसन्स, नॉर्म और वैल्यूज। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन मोर्स है। जी सर। देखो मोर्स में पनिशमेंट और रिवार्ड्स, सर सी। रोल नॉर्म्स भी नहीं होगा, ये सैंक्शन का डायरेक्ट। देखो एक तो है वैल्यूज, वैल्यूज पता ही है वो जस्ट सोशल एक्सपेक्टेशन होता है। लेकिन जब रिवार्ड और पनिशमेंट एसोसिएशन हो जाता है रोल से, जैसे टीचर है, कोई अगर विद्यार्थी नहीं पढ़ा तो उसको पनिशमेंट देगा, बाहर खड़ा हो जाओ, है ना। बहुत अच्छा पढ़ा तो उसको जो है रिवार्ड दिया जाएगा, है ना, टॉप कराया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा। तो सेंसन से डायरेक्ट क्वेश्चन। मोर्स जो होता है वो एक प्रोहिबिटेड नॉर्म्स है। नॉर्म तो व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट मेक्स नॉर्मल, तो इसमें तो नॉर्म्स होगा। तो 28 में सेंसन से भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन सवाल पूछा गया, सेंसन की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है मैचिंग है 29 में। प्राइमरी ग्रुप किसके द्वारा दिया गया? प्राइमरी ग्रुप आपको पता ही है। लुकिंग ग्लास सेल क्या था? चार्ल्स फूले। इसका डी जाएगा। रेफरेंस ग्रुप आर हेवन के द्वारा दिया गया है। बाद में रेफरेंस ग्रुप का ही मॉडल को एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल किया। इन ग्रुप और ऑड ग्रुप ये W.G. समनर का है, और ऑर्गेनाइज ग्रुप रॉबर्ट बी स्टीड का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये डी वाला ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन। तो कई बार कॉन्सेप्ट और जो निकिता जो हमने आपको सेंड किया है ना PDF, उसमें ऑलरेडी है कौन किस कॉन्सेप्ट को क्वाइन किए। हालांकि वो हिंदी में है लेकिन उसको ट्रांसलेट करके हम भेजते हैं। 30 नंबर पे आ जाइए। सर निकिता चली गई है। अच्छा निकिता चली गई है, तो ऐसा करते हैं कि 30 तक ही आज रखते हैं। आज जी सर। 1.5 आवर्स में हो गया। तो ऐसा है कि हम लोग इसी तरीके से हर दिन, चूंकि मैं अभी फिलहाल पहले मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, तो यूनिवर्सिटी में
बच्चों को पढ़ाने का एक शौक रहता है। तो नॉलेज के लिए ये है कि नॉलेज जितना ज़्यादा आप खर्च करेंगे उतना ज़्यादा आपकी जो है वो